Jai Swaminarayan everyone. Good morning to you all. Today in our online classes for 12th Standard Commerce, I am going to explain one more topic that is related to meaning of inflation. So today I am going to explain you about the meaning of inflation, its characteristics, and what are the causes of inflation. First thing is, it is a situation when excess of demand is there over supply of goods and services. So inflation is a situation that is being caused when the excess of demand is there over the supply of goods and service. जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई के कंपैरिजन में किसी भी गुड्स और सर्विस से रिलेटेड, तो आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन अराइज हो रहा है. सेकेंड थिंग इज monetary income rises faster than the real income. So it is also being occurred when the monetary income level is rising faster than the real income. तो इन्फ्लेशन एक ऐसा सिनेरियो है जो तब भी अराइज होता है जब मॉनेटरी इनकम जो है वो रियल इनकम की कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टर वे से अराइज हो तब. So that is the 2 point that is related to inflation. Means the increase in demand means it is being caused when the excess of demand is there over supply of goods and service. Second thing is monetary income, and the monetary income rises faster than the real income, then it also leads to inflation. Second point is some of the characteristics that are associated with inflation. So constant rise in price level. So there is a constant rise in the price level of different goods and commodities at the time of inflation. जब इन्फ्लेशन हो रहा हो तब जो भी अलग अलग कमोडिटीज या गुड्स और सर्विसेज है उनके प्राइस लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है. सेकेंड, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. हर एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है उन सभी सेक्टर्स में प्राइस जो है वो बढ़ने लगती है. सेकेंड थिंग इज परचेसिंग पावर डिक्रीसेस. बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन द परचेसिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल डिक्रीसेस. नेक्स्ट थिंग इज द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें जो कांस्टेंट प्राइस राइज होती रहती है और ये देयर इज अ राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी जो प्राइस है वो उसमें इंक्रीज होता रहता है. इस वजह से इसको भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन कंसिडर किया गया है. So once again I want to go through the characteristic, that is constant rise in the price level. So there is a constant and continuous rise in the price level of the goods and commodity. Next thing is price rise in all sectors of the economy. तो हर एक जो सेक्टर जो इकोनॉमी से कनेक्टेड है उन हर एक सेक्टर में प्राइस जो है वो बढ़ती रहती है. Purchasing power decreases. The purchasing power of individual or people decreases at the time of inflation, and there is a rise in the price level after the full employment of factors of production. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी यहाँ पे जो भी लेवल है, जो भी प्राइस लेवल है वो अराइज होता रहता है और इट विल गो अप. The other factors that you have to consider in the characteristics of inflation are, some other factors are there which you have to consider. For example, when the government took control over and suppresses the price level, the increasing price level, then even if there is no rise in the price, it is considered inflation. It is being termed as suppressed inflation. तो जब गवर्नमेंट जो है
वो अपने कंट्रोल के जरिए, अपने रूल्स, अपने प्रोसीडिंग्स के जरिए, अपने लॉ के जरिए जब इंक्रीज जो प्राइस लेवल में हो रहा है उसे सरप्रेस करती है या फिर उसे सरप्रेस करते हैं, भले ही उस टाइम पीरियड में किसी तरह का प्राइस लेवल इंक्रीज ना हो रहा हो, तो भी उसको आप इन्फ्लेशन कंसिडर कर सकते हो एंड उसको सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं. सो व्हेन द गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ओवर एंड सरप्रेसेस द राइज इन द और द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, if it is not inflation and if it is not there, the price level not rise, it is being considered as an inflation. भले ही जब गवर्नमेंट अपने लॉ या फिर रूल्स के जरिए जो भी प्राइस लेवल जो इंक्रीज हो रहा है उसको सरप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त जब इन्फ्लेशन पीरियड अराइज हो रहा हो, भले ही उसमें किसी तरह का प्राइस राइज नहीं हो रहा हो, तो भी उसको एक तरह से सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहेंगे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का एफर्ट जो है वो रहता है कि वो प्राइस लेवल को और आगे ना बढ़ने दे बाय द वे ऑफ रूल्स, लॉ और सब्सिडी. तो इसको आप सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन कह सकते हो. प्राइस राइज इन इकोनॉमी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो if there is a price rise in a economy for a short period of time that is connected to the limited goods and service, then it cannot be termed as inflation. अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है वो राइज होता है, वो बढ़ता है, तो उसको आप इन्फ्लेशन नहीं कह सकते. दूसरा फैक्टर, factor of production gets unemployed and there is a rise in price. So when the factor of production gets unemployed and there is a rise in the price, then the producer gets the incentives to produce more and the economy gets boosted, or the economy gets boosted. And because of the economy is getting boosted or it is getting the favor, at that time the factors of production get employed, production rises and the prices will fall. तो यहाँ पे जब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाए, और यानी कि उनका ठीक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ना किया गया हो, उन्हें ठीक तरीके से प्लेस ना किया गया हो, तो जो प्राइस उस वक्त अगर अराइज होती है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को कुछ इंसेंटिव मिलता है जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा कंडक्ट कर सके. अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है बाय द वे ऑफ इंसेंटिव, देन ही कैन एम्प्लॉय मोर रिसोर्सेज, he can employ the factors, by that the production increases and the prices of the goods and commodity will fall. जब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर के थ्रू बाय द वे ऑफ इंसेंटिव्स किया जाता है तो इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट मिलता है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ता है और प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज घटने लगती है. नेक्स्ट थिंग that is related to causes of inflation. Inflation के कौन कौन से कारण हो सकते हैं. This I have explained you the characteristics of inflation and what are the other points you have to consider in inflation. The next thing is related to causes of inflation. So increase in demand. Increase in demand leads to increase in price of products. Supply is, if the supply is not being provided and if the supply is insufficient in comparison to the demand or the increasing demand, then that kind of situation leads to inflation. तो यहाँ पे जब डिमांड जो है वो किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा हो तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी अराइज होती है, मीन्स उस प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होता है. तो उसके मुकाबले अगर सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंट हो या फिर सप्लाई जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में ना हो, देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज एंड दैट लीड्स टू द इन्फ्लेशन.
तो इंक्रीजिंग डिमांड के बराबर सप्लाई भी होना जरूरी होता है. सो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. It is called demand pull inflation. So inflation that is being caused due to increase in aggregate demand, which is more than the aggregate supply, then that can be termed as a demand pull inflation. इस चीज को आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह सकते हो जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो तब. Increase in supply of money. Now, if the supply of money is more in a state, then the income of the individual will also increase, because of which the demand of necessity of an individual increases. So, when the state is having more money, then the income of a person will increase, by which his necessity or his demand for the different necessity increases. तो यहाँ पे जब किसी भी तरह से सर्कुलेशन ऑफ मनी किसी स्टेट में ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो उस वजह से जो इनकम लेवल है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स की इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो डिमांड है जो अलग अलग नेसेसिटीज या गुड्स और सर्विस से जुड़ी हुई है वो भी अराइज होती है. सो अगेंस्ट इंक्रीजिंग डिमांड सप्लाई, इफ द सप्लाई रिमेन्स स्टेडी, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन. तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसके मुकाबले जो सप्लाई है अगर वो स्टेडी और कांस्टेंट ही रहे तो उससे प्राइस इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज होता है. सो इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन बिकॉज इट ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और कमोडिटी. एंड अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड, इफ द एडिक्वेट सप्लाई is not there or the supply remains steady, then it will leads to increase in price and inflation. Increase in cost of production. So here the next point is, if there is an increase in cost of raw material, machinery, water rate, then the prices of goods and services will also increase. तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी कि जो प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, अगर उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे कि जो भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस है वो भी काफ़ी इंक्रीज होंगे. सो दिस कैन बी टर्म्ड एज अ कॉस्ट पुल्ड इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. इस तरह के इन्फ्लेशन को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, उसको आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कह सकते हो या फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कह सकते हो. इट इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन मटेरियल और द इक्विपमेंट दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन. I am going to explain you about the other reasons for inflation. तो सिर्फ डिमांड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट होता, कुछ और रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है. उसमें है पहला टैक्सेशन पॉलिसी. So the taxation policy that is being implemented by the government can also lead to inflation. इन्फ्लेशन जो है वो जो टैक्सेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है उसके वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है. इसमें दूसरा, इंक्रीज इन टैक्स रेट बाय गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो अगर जो भी टैक्स रेट जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है उसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट का रहता है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का सिनेरियो क्रिएट होता है. सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट. तो आप जानते ही होंगे कि 70% इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज डन वाया इंपोर्ट. तो 70% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया में आता है वो इंपोर्ट के द्वारा आता है. और राइस इन क्रूड ऑयल. सो इफ देयर इज अ राइस इन क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट, then there will be a rise or increase in the rate of diesel and petrol
will also there। तो अगर किसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि 70% जो पेट्रोलियम है वो वाया इंपोर्ट के द्वारा आता है, और अगर ऐसा सिनारियो क्रिएट होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल का रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन, the inflation which is being caused by the increase in prices of import। तो इंपोर्ट जो होता है उस प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उससे भी इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज स्कैरसिटी। यस, if there is a scarcity of raw material, equipment and other requirement of production can increase the price of goods and service। तो अगर किसी तरह की स्कैरसिटी यानी कि किसी तरह की अछत अगर किसी रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट या फिर जो भी चीजें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, उन चीजों की अगर अछत या फिर स्कैरसिटी क्रिएट होती है तो उससे जो प्राइस लेवल जो गुड्स और सर्विसेज का होता है वो बढ़ जाता है। एंड if scarcity remain for a longer period of time, then it will leads to inflation। अगर ये जो स्कैरसिटी जो रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी इक्विपमेंट प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उनकी अगर स्कैरसिटी लंबे समय तक के लिए रही तो जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है उनका प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, उनका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और उससे इन्फ्लेशन का सिनारियो क्रिएट होता है। So these three are the other minor reasons for the inflation। ये तीन दूसरे minor reasons हैं जो जिसकी वजह से inflation create होता है, जैसे कि taxation policy that is being carried out by the government, second increase in the prices of import, यानी कि जो भी चीजें इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, बाहर से लाई जाती है, उनके अगर प्राइस में इंक्रीज होता है तो भी इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। तीसरा, जो भी स्कैरसिटी अगर किसी रॉ मटेरियल, मशीनरी या इक्विपमेंट की जिसको प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, अगर उनकी स्कैरसिटी क्रिएट होगी तो जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है उसका प्राइस लेवल बढ़ेगा और इस वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन टू यू दिस मच। In my next session I will continue with a new point। Thank you।